Hello everyone, so I am back again with another very important session for your upcoming CDS examination, that is the soils of India. So while talking about the soils of India, the first and the foremost soil that we have to study is your alluvial soil. It is present in approximately 43% of the land area of India, and it is the largest soil that is present in India, right? Now, while studying about alluvial soil, we have to understand it is categorized into two different parts. One is Khadar and one is Bhangar. Now, while studying about these, you have to remember these are nothing but types of alluvial soil. Khadar is the new alluvial deposit and Bhangar is the old one, right? So you can remember it by बेकार. The word बेकार, कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो हम उसको बेकार बोलते हैं ना, तो बी से भंगार, बी से बेकार, and that is the old alluvial deposit, and Khadar is the new alluvial deposit, right? So alluvial soil is found abundantly in a lot of parts of India. Which all those parts are? Let us look at that. First are the northern plains, as they are made by deposition of various rivers. At second we have coastal plains, right? Third you have your river valleys, various valleys that are formed by rivers, and finally we have our deltas, because deltas are nothing but depositions of rivers, right? In the end, this is at the last stage of the river, and deltas are basically nothing but the deposits that are made by the rivers over there, right? Now a few characteristics of alluvial soil. First off, it is very rich in potash. It is rich in potash but poor in phosphorus, poor in nitrogen, and poor in humus. This you have to remember. Sometimes they ask you questions on the characteristics of various soils, right? So this is a very important aspect. And also you have to remember, in peninsular India, that is in the south part of India, the peninsula part, it is only found in the deltas of east coast. Right? This is another very important feature of the alluvial soils, right? So various kinds of crops grow in it, like we all know: wheat, rice, bajra, sugarcane, right? All of these are very conveniently grow in the alluvial soils, and also it is the soil which is found in the largest amount in India. Now number 2, the second largest soil found in India is black soil, which is also referred to as regur soil or self-plowing soil, right? दिस इज़ अ वेरी रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन. इसको आप स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम्स में ये आपसे पूछा जा चुका है. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल, राइट? इट इज़ फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक लावा. This has been formed by volcanic lava, right? So it is a deposit of volcanoes, and it is also referred to as black cotton soil. Because it is very effective for the growth of cotton. Very effective for the growth of cotton, right? And it is very rich. It is rich in iron and humus. Both iron and humus में ये बहुत rich होती है. And it is black in color due to the presence of titaniferous magnetite. This is an organism which is present in it, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक कलर का हमें नज़र आता है, right? And it is also very rich in lime. Okay, it is found on the Deccan Plateau. As we know, Deccan Plateau is formed by flood lava, right? And it retains moisture for a long time. Right? Now we have seen what all elements it is rich in. We also have to see the elements it is poor in, because that is its characteristic. It is poor in nitrogen, humus. यहाँ से humus हटाओ आप. It is poor in humus, right? It is poor in nitrogen, humus and phosphorus. हमने ऊपर भी यही पढ़ा था, right?
जो हमने पढ़ा था हमारी एलुवियल सॉइल वो भी इन्हीं एलिमेंट्स में पुअर थी. तो ये दोनों सॉइल्स फर्स्ट एंड द सेकेंड वन वेरी इजी टू रिमेंबर, दे आर बोथ पुअर इन नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड फॉस्फोरस, ओके, एंड रिच इन आयरन एंड लाइम. दिस you have to remember, right? Now let us look at the third classification that we have with us, that is the red and yellow soil. Red and yellow soil present in third largest amount in our country. पहली थी alluvial, दूसरी थी black soil, third is red and yellow soil. It is formed by the weathering conditions. weathering हो जाती है ना rocks की, हमने पढ़ा है, weathering of igneous rocks and metamorphic rocks. igneous and metamorphic rocks, जब उनकी weathering होती है तो we find red and yellow soil. Where is it found? It is found in eastern and southern part of Deccan Plateau. ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन प्लेट्यू. ब्लैक सॉइल भी हमने पढ़ा डेक्कन प्लेट्यू में ही मिलती है, राइट, एंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको ऑप्शंस दे देंगे स्टेट्स के नाम लिख के और पूछेंगे रेड एंड येलो सॉइल इनमें से कहाँ मिलेगी. सो यू मस्ट नो हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन. ओके, नाउ इट इज़ रिच इन दिस सॉइल, वेरी ऑब्वियसली इज़ रिच इन आयरन, इट इज़ रिच इन लाइम एंड इट इज़ रिच इन पोटाश. ऊपर वाली दोनों सॉइल्स इसमें पुअर थी, लेकिन ये वाली सॉइल इसमें रिच है. ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर. एंड व्हाट आर एलिमेंट्स इज इट पुअर इन? इट इज़ पुअर इन कंटेंट्स ऑफ नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड योर फॉस्फोरस. फॉस्फोरस, इन सारी चीज़ों में ये जो सॉइल है दैट इज़ पुअर. ओके, एंड इसमें किस टाइप की क्रॉप्स होते हैं? इसमें क्रॉप्स होते हैं जैसे टोबैको, जैसे रागी, pulses, then your oil seeds, tea, spices. Spices से आपको याद रखना, this is even found in Kerala. Why? Because Kerala is known as the king of spices. King of spices, सबसे ज़्यादा spices यहीं उगते हैं. So spices से आपको केरला भी याद रखना है. जो हमारी red and yellow soil है that is also found in Kerala. Okay? Then tea also. tea से आपको north east याद रहेगा. नॉर्थ ईस्ट में टी ज़्यादा उगती है ना. सो दिस इज़ हाउ यू कैन अटैच दीज वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग्स एंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेमोराइज देम. देन द फोर्थ वन इज लैटेराइट सॉइल. लेटेराइट सॉइल, राइट. लेटेराइट सॉइल इज द कज़न सिस्टर ऑफ, इट इज़ द कज़न ऑफ रेड एंड येलो सॉइल. इट इज़ द कज़न ऑफ रेड एंड येलो सॉइल. ठीक है, एंड इट इज़ यहाँ पे लीचिंग होती है. लीचिंग का प्रोसेस होता है इन लेटराइट सॉइल. लीचिंग का मतलब क्या है? लीचिंग का मतलब ये है कि इफ़ दिस इज़ द सरफेस ऑफ योर सॉइल, राइट, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है. सो व्हाट हैपन्स, वाटर पर्क्यूलेट्स इनसाइड, और जो यहाँ पे इसके मिनरल डिपॉजिट्स हैं, पानी उनको लेके जाके नीचे वाली फ्लोरिंग पे ले जाता है इन द बेड्स, इन द लोअर बेड ऑफ द सॉइल. तो ऊपर से जो है वो चले जाते हैं मिनरल्स. इस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं. द लीचिंग मीन्स व्हेन ड्यू टू वाटर पर्क्यूलेशन द मिनरल्स प्रेजेंट ऑन द surface of soil get deposited in the bed of the soil. So this happens in laterite soil. L से leaching, L से laterite, this way you can associate it, right? And it needs specific monsoon conditions. Specific monsoon conditions. Because leaching तभी होगी अगर बारिश ज़्यादा होगी. You can't expect this to happen in Rajasthan, right? Because वहाँ पे बारिश नहीं होती. So that is not possible in Rajasthan, right? Next, it is rich in iron oxide. Iron oxide में it is very very rich. Why? Because जो hematite है that is FeO2 and bauxite which is aluminium oxide, इन दोनों की लीचिंग नहीं हो सकती. इनकी लीचिंग नहीं होती. ये जो ओर्स हैं इनकी लीचिंग नहीं होती. ये जैसे हैं, अगर यहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम के डिपॉजिट्स हैं तो वो वहीं रहेंगे. दे विल नॉट पर्कुलेट डाउन टू द बेड ऑफ द सॉइल, राइट. सो दैट्स वाई इट इज़ रिच इन आयरन ऑक्साइड. एंड दिस सॉइल इज़ नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन नेचुरली, बिकॉज उसके मिनरल्स तो नीचे चले गए. जिन मिनरल्स से सॉइल की क्रॉप्स की ग्रोथ होनी थी वो मिनरल्स तो नीचे बेड ऑफ द सॉइल में चले गए. तो फिर कहाँ से यहाँ पे कल्टिवेशन होगी, राइट. यहाँ कल्टिवेशन नहीं हो सकती. ये हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है.
This soil is used in house construction. How? By making bricks. Bricks देखी है ना आपने, रेड कलर की होती हैं ईंटें, राइट? सो दैट्स वाई इट इज़ रिच इन आयरन ऑक्साइड. एंड दिस सॉइल सोक्स वाटर वेरी क्विकली. सोक्स वाटर क्विकली, बहुत जल्दी सोक करती है. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी आपको याद रखना है, राइट? एंड इट इज़ फाउंड इन ओडिशा, महाराष्ट्र, देन योर वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, then Andhra, then Tamil Nadu, right? These are the states जहाँ पे this soil is found. So I hope you are clear with the process of leaching and why this soil is known as laterite soil and why it is not useful for cultivation, right? Now let us look at the fifth type, that is arid soil. Arid soil. This is known as desert soil. अभी आपको नाम से ही clear है, this is the kind of soil which is found in desert. There is lots of calcium in this soil. Lot of calcium. Calcium के बहुत deposits होते हैं in your arid soils and it has little or no humus. Little or no humus present inside it, right? And it is the most porous soil. Most porous soil. Porous का मतलब समझते हो, इसमें pores हैं तो पानी बहुत जल्दी इसमें percolate होता है, नीचे तक चला जाता है पानी इसमें, right? और इसका कलर वेरी करता है बिटवीन रेड एंड ब्राउन. रेड एंड ब्राउन कलर की होती है ये सॉइल, राइट? दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. देन इट इज़ इनसफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फेट. इन दो चीज़ों में ये इनसफिशिएंट है. ह्यूमस में भी इनसफिशिएंट है बिकॉज वेरी लिटिल ह्यूमस इज प्रेजेंट इनसाइड इट, राइट? एंड इट इज़ डेवलप्ड इन राजस्थान. देन द सेमी एरिड एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, देन योर गुजरात, बिकॉज ऊपर गुजरात में भी डेजर्ट है, राइट? रन ऑफ कच्छ. दिस सॉइल हैज़ नो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. नो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. जो मॉइस्चर है ना वो इसमें टिक नहीं पाता, नीचे परकुलेट हो जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी पोरस. तो इसलिए इसमें कोई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है और यहाँ पे ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन होती है. इस सॉइल में ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन होती है. ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन समझते हो आप? डेजर्ट वेजिटेशन, जैसे कि कैक्टस, बबूल, इस टाइप के प्लांट्स इसमें ग्रो करते हैं, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, योर सिक्स्थ टाइप इज़ योर फॉरेस्ट सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द हिमालयाज़. देन योर वेस्टर्न घाट्स, सतपुरा रेंजेस पढ़ी है ना हमने, वहाँ पे. दिस सॉइल इज़ लोमी एंड सिल्टी, इस टाइप की है. एंड इट इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस. वेरी रिच इन ह्यूमस. इसीलिए जब आप हिमाचल जाते हो तो आप देखते हो वहाँ बहुत ग्रीनरी है. वाई? बिकॉज द सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इन दिस सॉइल. द सेवेंथ वन ऑफ योर सॉइल इज़ यूसाला सॉइल. यूसाला सॉइल, इसको हम सेलाइन सॉइल भी बोलते हैं. सेलाइन सॉइल. वाई? बिकॉज सॉल्ट का कंटेंट एक्सट्रीमली हाई रहता है इस सॉइल में, राइट? एंड इट इज़ अनफिट फॉर कल्टीवेशन. नेचुरली जिस सॉइल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकती. सो दिस इज़ अनफिट फॉर कल्टीवेशन. दूसरी सॉइल जो हमने अनफिट पढ़ी थी वो कौन सी थी? दैट वॉज लेटराइट. लेटराइट सॉइल भी अनफिट थी फॉर कल्टीवेशन. So in the same way Usala soil or saline soil is also unfit for cultivation. Where is it found? It is found in Gujarat, in Rann of Kutch, then your eastern coast, then the Sundarbans area. जो हमारा सुंदरबंस का एरिया है ना वहाँ पे मिलती है in maximum amount. And finally the eighth kind of soil that you have is peaty and marshy soil. Peaty and मार्शी सॉइल, जो हम बोलते हैं ना हिंदी में दलदल, वो वाली सॉइल है ये. एंड यहाँ पे क्या है? हैवी रेनफॉल होती है. हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ में मिलती है ये. और ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, राइट? सो इट इज़ फाउंड इन एरियाज़ लाइक केरला, एरियाज़ लाइक तमिलनाडु, बंगाल, राइट? इस टाइप का जो कंडीशंस है वो यहाँ पे प्रेवलेंट हैं. इसलिए
This type of soil is rich in humus. It is rich in humus and organic content. ऑर्गेनिक कंटेंट में भी ये बहुत हाई होती है, राइट। यहाँ पे भी लीचिंग होती है नेचुरली, जहाँ बारिश है वहाँ पे लीचिंग होगी ही होगी। एंड यहाँ पे हम कैपिलरी एक्शन देखते हैं इन प्लांट्स, कैपिलरी एक्शन ऑब्जर्व होता है यहाँ पे। Another very important characteristic. Now these were some classifications of soil based on the Indian context, right? But there is a different kind of soil taxonomy. एक इंटरनेशनल सॉइल टैक्सोनॉमी भी है ना, सॉइल टैक्सोनॉमी, वी हैव टू लुक एट दैट ऑल्सो, बिकॉज कई बार उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो लेट अस लुक एट दैट। द फर्स्ट वन इज जेली सॉल। जेली सॉल पहली क्लासिफिकेशन, दिस इज द परमानेंटली फ्रोजन सॉइल। परमानेंटली फ्रोजन सॉइल, अब फ्रोज़न से आपको पता लग ही गया होगा कि ये वहाँ उन जगह पे मिलती है जहाँ ठंड बहुत होती है। परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा अ टर्म इन ज्योग्राफी। परमाफ्रॉस्ट एरियाज़ में ये मिलती है। इट इज़ परमानेंटली फ्रोजन सॉइल, राइट। द सेकेंड वन इज़ हिस्टोसॉल्स। हिस्टोसॉल्स ये किस टाइप की सॉइल है? दिस इज़ फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर। तो इससे हमें क्या पता लगता है? यहाँ पे फर्टिलिटी काफ़ी होती है, फर्टिलिटी काफ़ी होती है यहाँ पे, राइट। द थर्ड वन इज़ योर एंडीसॉल्स। एंडीसॉल्स ये किस टाइप की सॉइल्स हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक मटीरियल। वॉल्केनिक मटीरियल की भी आगे जब वेदरिंग हो जाती है ना, तब हमें एंडीसॉल्स मिलते हैं। इट इज़ वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर प्लस H2O। इनमें ये सॉइल बहुत बहुत रिच होती है। इट इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल, वेरी फर्टाइल सॉइल। ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छी है, प्लांट ग्रोथ के लिए, राइट। योर फोर्थ वन इज़ ऑक्सीसॉल्स। ऑक्सीसॉल्स दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ नोन एज ट्रॉपिकल सॉइल। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल सॉइल। ये भी वेदरिंग से बनी हुई होती है और इसमें आयरन ऑक्साइड के डिपॉजिट्स मिलते हैं हमें। आयरन ऑक्साइड एंड क्वार्ट्स के डिपॉजिट्स मिलते हैं हमें ऑक्सीसॉल्स में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन योर फिफ्थ टाइप कम्स टू वर्टिसॉल्स। वर्टिसॉल्स ये किस टाइप की सॉइल है? दिस इज़ अ क्ले सॉइल। क्ले सॉइल किस टाइप की? ऑफ बोथ श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग काइंड। श्रिंकिंग भी होती है इसकी और स्वेलिंग भी होती है, दोनों चीज़ें इसमें ऑब्जर्व की जाती हैं। एंड इट इज़ अ क्लेई सॉइल। बाय नेचर वर्टिसॉल इज़ अ क्ले सॉइल। सिक्स्थ इज़ योर एरिड सॉइल्स। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा, अभी हमने एरिड सॉइल पढ़ी है। डेजर्ट एरियाज़ में ये मिलती है, एरिड क्लाइमेट में। दिस इज़ फाउंड इन एरिड क्लाइमेट। इट इज़ अ मिक्स, इसमें मिक्स होता है किस किस का? सॉल्ट, देन योर जिप्सम। जिप्सम आपने साइंस में पढ़ा होगा। एंड कार्बोनेट्स ऑल्सो, कार्बोनेट्स। ये सारे जो मिनरल्स हैं वो एरिड सॉइल्स में पाए जाते हैं, राइट। लुक एट योर सेवेंथ टाइप, दैट इज़ एल्फीसॉल्स। एल्फीसॉल्स, एक मिनट में इसको दोबारा से लिखती हूँ। एल्फीसॉल्स ये किस टाइप की सॉइल है? दिस इज़ अ डेसिडुअस फॉरेस्ट सॉइल। deciduous forest soil, right? Then your eighth is antisols. एंटीसॉल्स ये सॉइल क्या होती है? आपने पढ़ा है ना कि जो हमारी सॉइल है जो उसके बेड्स होते हैं, टॉप लेयर, देन उसके नीचे एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, देन अगेन एक लेयर। हर लेयर में अलग अलग टाइप के मिनरल्स कंटेंट्स हमें मिलते हैं, राइट। सो एंटी सॉइल क्या है? इट इज़ द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द सॉइल। टॉप मोस्ट सरफेस जिसकी अभी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। दिस इज इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट। नो सॉइल डेवलपमेंट हैज़ अकर्ड ओवर हियर। इट इज़ जस्ट द टॉप मोस्ट लेयर। जैसे कहीं से एरोड होके कुछ एलिमेंट आए, कुछ मिट्टी आई और ऊपर डिपॉजिट हो गई ऐसे ऐसे, तो वो टॉप मोस्ट सॉइल है, एंटी सॉइल, जिसकी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है अभी तक। देन योर नाइन्थ इज इंसेप्टिसॉल्स। इंसेप्टिसॉल्स ये क्या है? दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ सॉइल डेवलपमेंट।
ये वो लेयर है जहाँ पे सॉइल डेवलपमेंट की शुरुआत होने लगती है, यहाँ से सॉइल डेवलप होने लगती है. यू कैन से इट इज़ प्रेजेंट इन दीज पोर्शंस, ये वाले पोर्शन में. ऊपर जो थी वो एंटीसोल, जहाँ से बिगिनिंग हो रही है डेवलपमेंट की, दैट इज इंसेप्टिसोल. एंड फाइनली द 10th काइंड दैट यू हैव इज दैट इज मॉलीसोल्स. मॉलीसोल्स ये किस टाइप की सॉइल है? दिस इज सॉफ्ट सॉइल. इसको ग्रासलैंड सॉइल भी बोलते हैं, ग्रासलैंड सॉइल, राइट. एंड इट इज़ इसमें क्या है, इसमें डेपोजिशन होती है ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. एंड एज द नेम सजेस्ट्स इट इज़ फाउंड इन ग्रासलैंड्स. तो ये भी काफ़ी फर्टाइल सॉइल है क्योंकि यहाँ ग्रासलैंड्स में ये मिलती है हमें. सो दिस इज़ योर इंटरनेशनल टैक्सोनॉमी ऑफ सॉइल्स. कई बार मैच द फॉलोइंग में ये आपको आ जाता है. सो यू कैन लर्न फ्रॉम हियर. दीज आर द ओनली थिंग्स दैट यू बेसिकली नीड टू लर्न अबाउट दैट, राइट. और ऊपर हमने इंडियन टाइप ऑफ सॉइल तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है. सो थैंक you so much for listening to my session. Please like, share and subscribe my channel. I'll be bringing these short capsules of revision for your serious examination, which will be very helpful to you. Please share this session with your friends so that they also get as much help required for the upcoming examination. Also, we do daily quizzes in my Telegram channel, both of English as well as GS. तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी. यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड दैट विल हेल्प यू इन प्रैक्टिसिंग सो दैट आपकी रिविजन होती रहे थ्रू क्वेश्चंस, राइट. सो थैंक यू सो मच.